I'll take up the general revision staffing and I'll take up the specific concept of HRM. The key HRM is not as per your part. Now, let us come to the very first, the definition. That is, what is staffing? तो staffing का मतलब होता है the right person for the right job. Why? क्यों? Why do we need the right person for the right job? See, job is never right or wrong. But the thing is, जो उसको करता है, the person who has to do that job, if that person is not qualified, experienced, efficient or competent according to that job, उस job के according, तो it will lead to time, it will lead to loss of money, and the work will not be accomplished as it should be. There are many examples in the in the real world जहां हम देख सकते हैं कि जिस इंसान को जो काम करना चाहिए वो नहीं करता. हमारे स्पेसिफिकली लेट अस कम टू द इंडियन जनरल वर्कफोर्स. हमारे यहाँ ना we don't have the skilled labors. We don't have the skilled labors means we have the laborers who are doing anything मतलब कि कोई किसी के पास कोई काम नहीं है तो चलो हम ये काम कर लेते. Like let us take the example of a plumber. So the plumber may not be having the competency to deal with certain severe issues. तो क्या होता है? We don't get that results as it should be. But if the person is trained, capable to handle that issue, तो क्या होगा? The work would be done in minimum time, minimum cost and efficiently. और इसीलिए हम जो ये वर्ड है ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है वो हम यूज करते हैं. दैट इज फॉर स्टाफिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि अगर हम स्टाफिंग कहते हैं तो व्हाट इज एचआर मैनेजमेंट? अगर हम स्टाफिंग कहते हैं तो व्हाट इज एचआर मैनेजमेंट? क्योंकि हमने तो यही सुना है हमारे ऑफिस के अंदर जो है वी आर हैविंग द एचआर, हमारे ऑफिस के अंदर जो है ऐसा है. तो वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक अ वर्ड कॉल्ड स्टाफिंग. तो एचआर इज अ ब्रॉडर एरिया और स्टाफिंग उसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेस है. एचआर जो है दैट डील्स विद द एंटायर procedure, process, anything which is related to staff, employees and even the owners. वहां पर अगर हम देखते हैं तो they have to deal with the acts, जितने भी आपके acts होते हैं like company act, factory act, provident fund act, pension act. They have to look into all these areas. They have to devise an area जिसके अंदर लोग काम करें. They have to devise the entire planning procedure कि एक कंपनी में स्टाफ का what should be the hierarchy, उसकी क्या hierarchy रहेगी, what should be the salary likewise, what should be the benefits likewise, and then they also have to liaison with the outsiders. आपके जो बाहर के लोग हैं लाइक गवर्नमेंट से करना है, इफ गवर्नमेंट है तो इनका सारा काम एचआर के अंदर आता है. और उसके अंदर एक प्रोसेस है व्हाट वी कॉल एज स्टाफिंग. स्टाफिंग उसका सिर्फ एक हिस्सा है. एचआर हैज टू डिवाइस एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ कंपनी. उसके कंपनी के अंदर आने से उसके कंपनी के बाहर जाने तक जितनी भी चीजें होंगी दैट ऑल विल बी डन बाय एचआर एंड दे हैव टू आल्सो कंप्लाई टू द रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, एवरीथिंग. और staffing is only a function which is performed under HR, right? HR is broader. Now, what is staffing exactly? Staffing means bringing in the people. Staffing means bringing in the
पीपल, किसी भी जगह पर लोगों को लेकर आना, एंड उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें दे आर एबल टू वर्क, डेवलप, and when they go out they get benefits. It is the process in which यहां से यहां अंदर आने के लिए जो रास्ता है उसको तय करना, to bridge the gap from where they are to where they have to go. यानी इफ अ पर्सन हैज टू एंटर अ कंपनी, तो उससे पहले जितनी भी आपके प्रोसेस हैं और फिर उसके बाद व्हेन ही एंटर्स, वहां जो प्रोसेस है उनको उसे फॉलो करना पड़े। ठीक है। नाउ इन एनी कंपनी देयर माइट बी सम रिक्वायरमेंट। The requirements will be according to the company. The company, if it is say, it's just a manufacturing company है, तो it may require staff, it may require uh, employees, it may require other people. But if it is a company which is having only trading, तो उसका हो सकता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ी कम होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी कंपनी किस तरीके की है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, इफ द कंपनी इज न्यू, आपने अभी एस्टैब्लिश किया है या फिर आपका मतलब कि बिल्कुल न्यू सेटअप है, तो वहां यू विल बी रिक्वायरिंग, मतलब यू नीड ऑल द पीपल। बट इफ इट इज एन ओल्ड कंपनी, तो आपके पास जो है मैन पावर को एस्टिमेट करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी कि व्हाट इज द वर्क फोर्स अवेलेबल एंड व्हाट इज द वर्क लोड। And if it is a new company, then what is the workload and how many workforce you require? तो ये आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर के अंदर आता, व्हाट इज द वर्कलोड एंड व्हाट इज द वर्कफोर्स। राइट। नाउ इफ इट इज एन एक्सिस्टिंग कंपनी, तो आपके पास चॉइस है कि अगर आपके किसी और यूनिट में, आपके किसी और ब्रांच में यू आर हैविंग एक्स्ट्रा स्टाफ, तो आप उस स्टाफ को यहां पर लेकर आ सकते हो। बट इफ इट इज अ न्यू कंपनी, देन यू हैव टू गो फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है। तो इंटरनल मींस इट मे बी जो इंसान जो है एक डिपार्टमेंट में है, एक यूनिट में है और हम उसको चेंज कर रहे, दैट इज हॉरिजॉन्टल। And he may not be getting extra pay, but he may be shifted from one unit to another. And promotion is when he is shifted to upper position with extra benefits. So most of the companies, they go with the internal when they have already the competent staff, and if they feel that staff is more, उनके पास extra staff है which they can absorb and they are competent, then they go for the internal source. ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस सिचुएशन में हम इंटरनल लेते हैं। दो सिचुएशंस, व्हेन द कंपनी इज ओल्ड, इट इज हैविंग द स्टाफ एंड द स्टाफ इज कॉम्पिटेंट, देन दे वो कहते हैं चलो ठीक है, और न्यू ब्रांच इज ओपनिंग, हमारा ये मैनेजर कॉम्पिटेंट है तो इसको हम प्रमोट करके दूसरे ब्रांच में डाल देते हैं, और मे बी अ ट्रांसफर। नेक्स्ट इज समटाइम्स द कंपनी लेज ऑफ, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए लोगों को हटा देती है बिकॉज दे मे बी हैविंग एक्सेस स्टाफ, तो वापस उनको बुलाना, तो दे मे गो विद दैट। अब आता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है दैट व्हाट आर द सोर्सेस इन द एक्सटर्नल। आपका सोर्स जो है वो एक्सटर्नल है और उसके अंदर सब, मतलब कहां से उन्होंने लिया है। एक्सटर्नल वी हैव लॉट। सबसे पहले देयर माइट बी एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और इट मे बी नाउडेज वी आर गोइंग विद द वेब मीडिया। हम वेब में देते हैं लाइक naukri.com, monster.com, LinkedIn, आजकल तो ये सारे बहुत ही फेमस हैं। वी मे गो थ्रू देम, देन वी मे गो विथ कैंपस प्लेसमेंट
यानी कि इफ वी वांट टू गो फॉर न्यू ब्लड, हमें बिल्कुल नया विदाउट एनी एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम कैंपस से उन बच्चों को लेते हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं, जो अप्लाई करते हैं, उनका वहां हम शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड वी गेट द कैंडिडेट्स इमीडिएटली। और इट मे बी बाय द प्लेसमेंट एजेंसीज। नॉर्मली जो प्लेसमेंट या कंसल्टेंट्स होते हैं, ये आपके हायर लेवल के लिए जाते हैं। दिस व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर इज दिस हैज कम इन द पेपर कि किस लेवल के लोगों को हम प्लेसमेंट या कंसल्टेंट के थ्रू लेते हैं। नॉर्मली इट इज फॉर द हायर लेवल, फॉर द टॉप मैनेजमेंट। कैंपस प्लेसमेंट हम लेते हैं एट द एग्जीक्यूटिव, जूनियर और स्टार्टिंग लेवल। और न्यूज़पेपर, वेब मीडिया से मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज, मतलब कि दोनों लेते हैं, मीडियम भी लेते हैं, टॉप भी लेते हैं। देन इट मे बी कैजुअल कॉलर्स, यानी कि हमारे पास जो डेटास पड़े हैं ऑलरेडी, जो हमारे पास डेटाबेस पड़े हैं, उनमें से किसी को बुलाना। इफ द जॉब हैज बीन बहुत जल्दी खाली हुआ है और हम देखते हैं हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उनको कॉल कर लेते हैं। और इट मे बी जस्ट पुटिंग अ नोटिस बोर्ड, और उनको जो है हम बुलाते हैं बाय पुटिंग अ कार्ड और बाय पुटिंग अ बोर्ड। एंड दिस इज डन ओनली फॉर द लेबर फोर्स। ये हम जो है लेबर फोर्स के लिए लेकर आते हैं एट द वेरी वेरी, मतलब कि माइनस लेवल, लाइक वांटेड डिलीवरी बॉय, ऐसा कुछ हम डालते हैं अपने उसमें वो। So there are different ways. Employment exchange is there, but employment exchange is only for the government or semi-government, not for the MNCs. MNCs either go with newspaper, web media आजकल सबसे कॉमन है, कैंपस प्लेसमेंट सबसे ज्यादा कॉमन है, प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंट्स आर फॉर द टॉप लेवल्स, कैजुअल कॉलर्स, नोटिस, या आपका कोई रेफरेंस है ऑलरेडी तो उनके थ्रू। तो ये आपके जो है कंपनी से बाहर से लेते हैं। And this is done when we want fresh talent, we want competent talent. The company is new, the company doesn't have existing old staff to be absorbed, उस एरिया में लेते। इसके ये मेरिट्स भी हैं, दिस इज द मेरिट ऑल्सो। अब पहला हमारे पास था, हमने एस्टिमेट किया हमें कितना, हमारे पास कितना काम है, हमें कितना स्टाफ चाहिए। फिर हमने देखा कि हमें कहाँ से रिक्रूट करना है, वेदर वी शुड टेक फॉर, दो चार लोग हैं इंटरनली कर सकते हैं, हम इंटरनल जाते हैं, नहीं तो हम एक्सटर्नल जाते हैं। नाउ इन द एक्सटर्नल, वंस यू हैव रिसीव्ड द, मतलब कि एप्लीकेशंस, आपको रिक्रूट करने के लिए एप्लीकेशंस आ गए, अब आप जाते हो विद द सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन के अंदर आपके पास जो है देयर माइट बी टेस्ट, एंड द टेस्ट माइट बी अ पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, देर आर 4 टेस्ट आपके। पर्सनालिटी इज नोइंग अबाउट योर बिहेवियर इन सर्टेन सिचुएशंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, क्योंकि आजकल वो मेंटल हेल्थ एंड ये आता है आजकल। मेन थिंग व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम इफ द, मैं एक मतलब कि आई वाज इन फैक्ट गोइंग थ्रू अ मीम, कि अगर पिछले मूवीज में जैसे दिखाते थे कि द पीपल गेट व्हाट यू कॉल दिस हार्ट अटैक, तो आजकल तो हर महीने हर एक को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आर यू एबल टू फील द प्रेशर? देन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, ये पेपर में क्वेश्चंस आपके हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर बता रही हूँ। इंटरेस्ट, अदर देन योर एरिया, व्हाट आर योर इंटरेस्ट? एंड ट्रेड इज आपका जो एग्जिस्टिंग वर्क है, ये नॉर्मली टेक्निकल के लिए जाता है, जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको मशीन चलानी आती है, वहां हम ट्रेड टेस्ट। दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द टेस्ट विल बी देयर और टेस्ट विल बी देयर। देन वी गो विद द इंटरव्यू, हम इसके बाद जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू पर। On selection is also called as a positive because we have to eliminate the people whom we think undesirable. फिर हमारा होता है फेस टू फेस इंटरैक्शन इंटरव्यू। Once the interview is done, the candidate is finalized, उसके बाद हम उसको जो है प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के लिए हम उसको ऑफर लेटर देते हैं।
हम उसको क्या देते हैं, ऑफर लेटर, मतलब वो सिर्फ एक ऑफर लेटर है। वंस द ऑफर लेटर इज एक्सेप्टेड, फिर हम उसको देते हैं, ये होता है जॉब ऑफर। उसके बाद हम उसको देते हैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसकी सारी चीजें उसमें मेंशन होती। उसके बाद when the person enters into your company, ये यहां तक था कंपनी में एंटर करने का तरीका। अब वो एंटर हो गया, अब उसको इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, ये कंपनी गोल है या फिर स्क्वायर है। तो द पर्सन हैज टू गेट एन ओरिएंटेशन, फमिलियराइजेशन। उसको जो है कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, लोग, काम, सबसे जो है फमिलियराइज करवाना है। सो वी हैव द ओरिएंटेशन। नाउ द ओरिएंटेशन कैन बी अ सिंगल डे, एक दिन सबको बुलाया, इट मे बी ऑन अ वेब, मे बी अ कॉन्फ्रेंस टाइप, या फिर द ओरिएंटेशन में भी उसको जो है किसी के साथ काम करने के लिए बोला 2-3 दिन के लिए। लाइक इन द टीचिंग नॉर्मली वी डू इन द सेम वे। व्हेन आई हैड टू रिजाइन, आई मतलब जो मेरे नीचे जो लड़की जो मतलब की मैम आई थी, उनको मैंने जो है, आई गेव हर ऑल द वर्क, एंड फॉर 3 और 4 डेज वो मेरा टाइम टेबल फॉलो करती थी। शी यूज टू सी कि मैं कौन कौन से स्कूल क्लास के अंदर जा रही हूँ, हाउ मच टाइम आई एम टेकिंग, एंड देन शी यूज टू। तो दिस इज हाउ वी नॉर्मली डू इट। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी है, कंपनी किस तरीके से उसको डील कर। द नेक्स्ट इज, वंस द placement has been done, the orientation has been done, now the person may require training. Training is फॉर योर एग्जिस्टिंग वर्क, आपका जो काम है उसमें आपको जो है इम्प्रूवमेंट लाने की। दैट कैन बी अ वेस्टिब्यूल, जैसे आपके लेबर फोर्स होता है, उनको डमी मशीन्स पे सिखाया जाता है। इट कैन बी एन अप्रेंटिसशिप, दैट इज आपका असिस्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉर द स्किल्ड पीपल लाइक कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इनके लिए होता है। देन इट मे बी मतलब कि और भी बड़े तरीके हो सकते हैं, दिस इज ऑन द मशीन, दिस इज ऑफ द मशीन। देन इट मे बी आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप। तो द ट्रेनिंग इज गिवन सो दैट जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसको वो सीख सकें, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए। एंड देन developmental programs are there. Training is done for everyone. Training is done for the existing job, and development is done for the managerial category, जहां पर उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, जो हम लोगों ने डायरेक्टिंग में पढ़ा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो थियोरी में, तो वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए उनको जो डेवलपमेंट चाहिए अपनी, उनकी पूरी पर्सनालिटी में उनके, दैट इज डन थ्रू द डेवलपमेंट। इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, इट गोज ऑन। वेर एज ट्रेनिंग इज डन टाइम टू टाइम किया जाता है। कोई नया मतलब कि इफ देयर इज न्यू सॉफ्टवेयर, तो लोगों को ट्रेन किया जाता है। एंड देन द अप्रेजल्स, यानी वो जो इंसान वहां पर काम करेगा उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, हाउ वी विल नो दैट द पर्सन इज कॉम्पिटेंट, द पर्सन इज कंप्लीटिंग। तो उसका अप्रेजल होता है, जो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसीज, इट माइट बी अ 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर। एंड उसकी जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाती है, जिसके अकॉर्डिंग उसके काम को एनालाइज करके उसके आगे की पे, प्रमोशन, जॉब एनरिचमेंट, इन सबको जो है ऐड किया जाता है। सो दिस ऑल इज डन बाय द प्रोसेस व्हाट वी कॉल द फंक्शन, व्हाट वी कॉल एज स्टाफिंग। एंड ये जो फंक्शन है, इट इज पार्ट ऑफ द HR department, that is human resource department, which has to also look after other aspects of staffing. So that is the chapter staffing. The first question you can expect is identify the function. आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपका जो है फंक्शन आ सकता है। देन आपके सिलेक्शन टेस्ट, देन
एक्सटर्नल एंड इंटरनल के बीच में डिफरेंसेस, ये आपके जो है आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं. एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कम्स एज 3 marker और 4 marker क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन. एंड प्रोसेस के अंदर मे बी यू आर गिवन 1 or 2 steps एंड यू मे बी आस्क्ड टू राइट द अदर वन. ये इसके क्वेश्चंस हैं एंड डायरेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा आपको जो है यू डोंट नीड टू bother about that. Now the second chapter which I'm taking today is marketing. दो मार्केटिंग से क्वेश्चन आपके जो है 4 markers जो है दैट इज मोर एक्सपेक्टेड, सिंस मोस्ट ऑफ द स्कूल्स गो विद द जो इनका योर प्रोजेक्ट होता है दैट्स ऑफ मार्केटिंग. येट व्हाट इज मार्केटिंग? What is marketing management in fact, right? In consumer protection we had learned to हम लोगों ने जो है 2 वर्ड सीखे थे, कैवेट, वेंडर, है ना. तो पहले क्या होता था, जो हमारे बायर्स होते थे दे हैड टू बी वेरी अलर्ट. But now with the consumer protection and the government intervention, it has become mandatory for the companies to also be very alert. और इसीलिए they have also taken up marketing as a serious function. Secondly, now we are living in a competent world. Gone are those days when we used to have 1 or 2 companies which were markets in the, जो मोनोपोली रखते थे, और अगर आपके पास इस कंपनी का नहीं तो आप दूसरी कंपनी में जाते थे. टुडे इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू आर नॉट हैविंग वन, यू आर हैविंग 10. तो जो कंपनी में जो लोग, मतलब जो ओनर्स हैं, नाउ दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट देयर ओन मार्केट स्टैंड. उनको अपना मार्केट स्टैंड भी देखना है, उनको अपने प्रॉफिट को भी देखना है. So it is very difficult for the companies to survive in the competent world. और इसके लिए एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है, इफ यू आर प्लानिंग योर मार्केटिंग इन द राइट मैनर. अगर आपने अपने मार्केटिंग को अच्छे से मैनेज किया है, देन दीज प्रॉब्लम्स मे बी रिड्यूस्ड. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट is related to all those functions which are important for profit, survival and growth. अगर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल मतलब की जो ऑब्जेक्टिव है, अगर हमें उसको अचीव करना है, we want to earn profit, we want to earn market stand, we want to survive, then we need to plan our things which is called as marketing management. Now there is one next question आता है कि what is the difference between marketing and selling? Are they similar? No. Selling is just pursuing a person to buy. किसी को मनाना, by giving them extra benefits, discount, maybe that is pursual. Whereas marketing is a complete strategy. मार्केटिंग आपका एक बड़ा सा, एक जैसे अभी हमने एचआर के अंदर स्टाफिंग पढ़ा, वैसे मार्केटिंग के अंदर सेलिंग इज ओनली अ टेक्निक. सेलिंग बेसिकली इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिट एंड सेलिंग, वेयर मार्केटिंग इज आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है उसको फोकस करता है. द नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी मार्केटेड. किस चीज को हम मार्केट कर सकते हैं? ये एक बार बोर्ड में पेपर में आया था. एनीथिंग, एवरीथिंग, पर्सन, प्लेस, इवेंट, एवरीथिंग. किसी भी चीज को आप मार्केट कर सकते हो. यू कैन मार्केट अ पर्सन. जो हम पोल में, जब हम लोग जो है किसी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं,
we are marketing for that person. When the advertisements come for some place, some मतलब की tourism place, that is for a place. जो आपके जितने भी मैचेस होते हैं उनको जो स्पॉन्सर करते हैं इवेंट, everything can be marketed. And today, in fact, we are actually living in the world of marketing. And marketing is now more shifting to the social platform also. पहले इट वॉज ओनली ओरल, फिर उसके बाद थोड़ा रिटर्न, फिर आपका टीवी मीडिया, नाउ इट इज कवरिंग एवरीथिंग। अब जब आप सामान को मार्केट करना चाहते हो तो मार्केटिंग सेलिंग जो है दैट स्टार्ट्स ओनली व्हेन योर प्रोडक्ट इज इन योर हैंड। आपके हाथ में आने के बाद आपको सेल करना है, लेकिन मार्केटिंग तब शुरू होता है जब आपने ये प्रोडक्ट को सिर्फ अपने दिमाग में सोचा होता है। द मोमेंट यू प्लान टू लॉन्च एनीथिंग, वहां से ही आपको जो है ये सारे के सारे फंक्शंस को साथ में रखकर चलना पड़ता है कि आप उसे कैसे यू आर गोइंग टू प्लान इट, हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट इन टू द पिक्चर, हाउ इट इज गोइंग टू बी मेड, हाउ इट इज गोइंग टू बी सोल्ड, उसके बाद क्या होगा। ऑल दीज रेलेवेंट आपके जो फंक्शंस हैं that are attached to marketing management. So when you are thinking about a product or a service, कुछ भी आप सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्या रहेगा, आपकी फिलॉसफी क्या रहेगी। ये वर्ड इसके जो है सिनोनिम्स है क्लास 12। इट कैन बी व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द फिलॉसफी, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने क्या सोचकर आप इस सामान को बेचने वाले हो। फर्स्ट, more items, less price, mass production, तो production, only pushing towards profit, aggressive selling, beautiful quality product, higher range product concept, thinking about what people want, what is the trend today, designing your product according to the needs, marketing, and also looking into the social aspects, environmental aspects, socio marketing. ऑर्गेनिक ही सामान हमने करना है। हम हमारे मतलब कि देयर इज अ कैफे इन दिल्ली, आई हैवंट विजिटेड बट आई हैव रेड अबाउट इट, which sells only the Ayurvedic food. That is a socio marketing because they are selling Ayurvedic food. That is चाहे कॉफी हो या टी हो या खाना हो, that's purely made with the Ayurvedic fund. So that is socio marketing. तो ये हमारे हैं कंसेप्ट और फिलॉसफी। वंस यू हैव फिक्स्ड योर फिलॉसफी, अब आपके फंक्शन स्टार्ट हो जाए। मैं फंक्शंस के साथ ही मार्केटिंग मिक्स को भी करूंगी। इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन, आई हैव मेड 4 डिफरेंट बॉक्सेस विद डिफरेंट कलर्स, और ये उसी को रिलेट भी करेंगी। ठीक है, तो फंक्शन में पहला होगा आपको जो है, यू नीड टू Ayurvedic is basically for health. It is health conscious. It's not product conscious. It is more about organic food, green tea, the Ayurvedic tea, which is good for your immunity, which is good for your overall health. इसीलिए it comes under social marketing. Please do mind, keep remember it, right? So once you have come to the first part कि मुझे अपना सामान लाना है मार्केट में, तो you need to go with the SWOT analysis, gathering and analysis. यानी you have to find the मार्केट में जाकर आपको जो है, you have to gather the information. What is the trend today? That can be done through the surveys, that can be done through the polls. यूट्यूब के पोल्स हैं, इंस्टा पर पोल्स हैं, जनरल पोल्स हैं। आप जो हो पोल्स के थ्रू आप देख सकते हो कि लोगों को किस चीज का ज्यादा मतलब कि दे आर ट्रेंडिंग और व्हाट दे एक्सपेक्ट। देन यू हैव टू सी द स्ट्रेंथ, यानी कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वेदर इट इज गोइंग टू कोप अप विद दोस
डिमांड्स, उनके पास पैसा है, मैन पावर है, क्या है वीकनेस, वेदर इट इज वीक इन सर्टेन एरियाज, सपोर्ट नहीं है या कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है। जैसे हमारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जो है उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ अवेलेबल जिसको हम ले रहे हैं। जैसे कोविड के बाद द अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनीज केम फॉर दोज प्रोडक्ट्स विच आर मोर हैविंग द हेल्थ बेनिफिट्स। जैसे आपके कोविड से पहले पीपल वर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द इंश्योरेंस पॉलिसीज, बट आफ्टर द कोविड पीपल स्टार्टेड टेकिंग, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। तो उस वक्त में जिन इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टार्ट किया था उनके लिए दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट अगेन इज द मतलब कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट है, वो सारे आपके थ्रेट। So you have to gather the information and also evaluate all these factors. It may take year to get all these information. The next is you have to go with the market planning. और प्लानिंग आपका जो हमने वहां पढ़ा था, the objective, developing the premises, then finding the alternatives, taking the best alternative and वही यहाँ हमारे प्लानिंग में हमारी फिलॉसफी, हमारे जो मतलब कि कंसेप्ट है, ये सब हमारे प्लानिंग के अंदर आ जाता है। बजट हमारा आ जाएगा, हमारी फिलॉसफीज आ जाएंगी, हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को बेटर कैसे रखेंगे, हमारी स्ट्रेटजी आ जाएगी, हम जो है उसे कैसे सेल आउट करेंगे, वेदर इट वुड बी कैश ऑन बेसिस और इट माइट बी ऑन, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट आपके होते हैं जिनको हम ईएमआई के थ्रू भी सेल आउट कर सकते हैं। अब हम मतलब वी मे हैव कोलैबोरेशंस विद पीपल, तो वो हमारा सारा प्लानिंग में आ जाए। फिर ये तो हमारा सब कुछ था मेंटल एक्सरसाइज, राइट। अब हमें उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना है और उसको हमने डेवलप करना है, विच मे बी इन योर माइंड, आपने उसे बना रखा होगा, कहीं ग्राफिक डिजाइन में बना रखा होगा। आपको उसको जो है यू हैव टू गिव इट अ कॉन्क्रीट शेप। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो शेप लेकर यहाँ आ गया है, लेकिन ये प्रोडक्ट सेल आउट कैसे होगा, इसमें हम क्या यूज करेंगे, what will be the standard things we are going to use, what will be the raw material kind we are going to use, whether we are having only one product or we are having three or four, उसमें क्या हम मटेरियल यूज करेंगे, फॉर विच टारगेट ग्रुप इट इज, तो ग्रेडिंग हम करेंगे, चिल्ड्रन प्रोडक्ट, विमेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, या चिल्ड्रन में ही इन्फेंट, देन आपके मतलब कि जो छोटे बच्चे उनके लिए, तो आपको उसे स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग करना है। वंस दीज आर डन, यहां तक हमारा मेंटल था, अब हमारा जो है यहां से फिजिकल स्टार्ट हुआ। अब हमारा स्टार्ट होता है द नेक्स्ट, और इस ये जो आने वाले जो अभी 1 2 3 4 5 6 7 हमने जो बना रखे हैं ना, ये 7 हमारे जाते हैं अंडर मार्केट मिक्स। तो हर एक कंपनी, it takes a mixture of market mix to get its product into the market. हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने के लिए, लॉन्च करने के लिए, इट हैज टू गो विथ 4 कंपोनेंट्स। और उस 4 कंपोनेंट्स को हम 4 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कुछ भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज एलिमेंट्स, वी कैन कॉल इट एज कंपोनेंट्स। तो आप इसमें जो हो बिल्कुल भी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम है, मार्केट मिक्स। वो है, हम जो आगे वाले फंक्शंस हैं उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ऑल द डिसीजंस related to the product will come under product. All the decisions relating to the price of the product will come under price. All the decision how the product will be sent to the people, to the consumers, तब तक वो कहां पर रहेगा, that would be under place. And how we would be promoting our products, that would be under promotion. वही फंक्शंस को हम मार्केट मिक्स में करते हैं। जो पहले हमारे थे ये सारे हमारे जो हैं, दे आर ऑल इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट, दे आर ऑल इन द मेंटल डिपार्टमेंट। अब हमारे हाथ में प्रोडक्ट बन के, क्योंकि प्रोडक्ट को क्या डिजाइन देना है, कैसे उसे डेवलप करना है, व्हाट काइंड ऑफ मशीन यू हैव टू यूज,
व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, व्हाट विल बी, ये सब कुछ जो है दे आर ऑल प्री प्लान्ड। अब मार्केट में वो आपके हाथ में प्रोडक्ट बनके आ गया है, तो उससे रिलेटेड हमारे 4 मिक्स है और उसको हम बोलते हैं मार्केट मिक्स। तो पहला होता है हमारा हमारा जो प्रोडक्ट है, व्हाट काइंड ऑफ, इफ यू सी आई हैव मेड येलो फॉर प्रोडक्ट, रेड फॉर प्राइस, ग्रीन फॉर प्लेस एंड प्रमोशन के लिए व्हाइट लिया है, एंड द सेम आई हैव डन हियर ऑल्सो। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम कैसे पैक करें, बिकॉज पैकेजिंग इज ऑल्सो अ साइलेंट सेलर। सुंदर पैकेजिंग हमेशा हमें अट्रैक्ट करती है। इवन वाइल यू आर बाइंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो कुछ चीजें बड़ी सुंदर सी लगती हैं, एंड वी इमीडिएटली गो थ्रू दैट। तो what kind of packaging should be there? Now packaging may also have the levels. आपके जो पैकेजिंग है उनमें लेवल्स भी हो सकते हैं। लाइक इफ इट इज, अगर हमारा जो है एक टूथपेस्ट है, तो पहला लेवल हमारा जो है वो टूथपेस्ट का वो ट्यूब है। फिर उस ट्यूब के ऊपर जो पहला डब्बा आता है वो हमारा सेकेंडरी होता है। एंड ऐसे ही कई एक जैसे जो ट्यूब्स होते हैं, सॉरी, एक जैसे जो डब्बे होते हैं उनको हम लेकर आते हैं इन द ट्रांसपोर्ट। सो देर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। So the first is what kind of packaging we need. Some may be requiring these kinds of 3. किसी किसी में आपका जैसे आपके जूस या मिल्क होते हैं उनका पैकेजिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, तो that has to be there. Next is because packaging helps the product from, मतलब कि वो हेल्प करता है प्रोडक्ट को स्पिल होने से बचाता है, इट सेव्स इट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, इसीलिए। द नेक्स्ट इज हमारे प्रोडक्ट में लेबल कैसा रहेगा, बिकॉज लेबलिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म एज पर लॉ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना जो है जितना कुछ है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यू आर यूजिंग, if the ingredients are suitable for certain level, certain people, everything has to be mentioned. The date of manufacturing, if there is any date of expiry, या फिर उसको कितने दिन में अंदर कंज्यूम करना चाहिए, यूज करना चाहिए, या उसके इंस्ट्रक्शंस हाउ इट हैज टू बी यूज्ड, एवरीथिंग हैज टू बी गिवन। लेबलिंग ऑल्सो इज अ पार्ट, मतलब कि वो प्रमोशन में भी आपको हेल्प करता है। सिंस आप जब लेबलिंग करते हो तो आगे की तरफ आप लिखते हो 10% फ्री, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रमोशन। ग्रेडिंग, अगर आपका येलो कलर है, रेड कलर है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके, तो लेबलिंग के अंदर हम वो सारी चीजों को भी डाल देते हैं। पैकेजिंग में हम कलर यूज करते हैं, लेबलिंग में उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एंड उससे रिलेटेड जो हमारे एक्शंस हैं वो डालते हैं। अब जो नेक्स्ट डिसीजन वी हैव टू टेक रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इज द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से आपके 6 मार्कर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। लेबलिंग से मतलब कि इंपॉर्टेंस आया है, पैकेजिंग से बनाने के लिए आया है। एंड ब्रांडिंग इज ऑल्सो दो स्टूडेंट जिनका मार्केटिंग वाज अ प्रोजेक्ट, उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ गुड ब्रांडिंग एंड व्हाट इज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग इज गिविंग द नेम टू योर प्रोडक्ट, एंड दैट डिपेंड्स कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में लाना चाहते हो। देर आर सो मेनी डिसीजंस विच आर related to branding. The name should be, it refers to the name as well as the sign, symbol, koi picture. And if that mark has been registered, then it becomes trademark. Otherwise हम इसको branding के नाम से बोलते हैं। Now what is the name given? The name should be unique, small. It should have the capability of explaining the meaning of that product. मतलब प्रोडक्ट खाने का और आपने उसका नाम कुछ और रखा। आई मेरे को याद है हमारे यहाँ पर एक मतलब की ढाबा है, नहीं एक मतलब ऐसा ही कुछ शॉप है, उसका नाम कुछ ऐसा है, अवुल एंड आई ऑलवेज थिंक कि ये क्या नाम हुआ, इट इज अवुल इज एनिमल, तो इट शुड relate, it should tell the benefits like Hajmola. Titan, Titan is आपका what
मारुति सुजुकी, तो मारुति इज फास्ट, तो उसमें स्विफ्ट, तो इट शुड बी एबल टू, इट शुड बी अडेप्टेबल। अगर हम उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो देन द प्रोडक्ट्स शुड बी एडेड, कैन बी एडेड, लाइक मारुति के दे हैव टू सेगमेंट्स, वन इज द नॉर्मल सेगमेंट, सेकंड इज द प्रीमियम सेगमेंट, नेक्सा। तो दे हैव मेड इट श्योर कि जो नेक्सा के अंदर है वो आपके प्रीमियम है, हाई रेंज कार है, और जो नीचे जो नेक्स्ट है आल्टो, ऑल्टो वगैरह, वो उनका उसमें सुजुकी उसमें आ जाता है, मारुति के। तो दैट इज हाउ दे हैव टू अडेप्ट। Long it should be there in the long term. It should not reflect or it should not hurt the sentiments of any community. तो ब्रांडिंग हमें जो है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, इसमें आपके एटलीस्ट 4 आपको लिखने को आता है। तो नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी, यू हैव डन द ब्रांडिंग, उसको आपने दे दिया कि ये इस नाम से बिकेगा, उसको आपने बता दिया कि उसमें कैसी पैकेजिंग रहेगी, व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग विल इट हैव, देन व्हाट काइंड ऑफ लेबल्स यू हैव टू यूज, इट इज आपका प्रोडक्ट। अब आता है प्राइसिंग। नाउ प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स। फर्स्ट इज आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या पड़ रहा है आपको, रॉ मटेरियल, वर्कर कॉस्ट, आपके सारा, देन आपके ओवरहेड कॉस्ट, यू हैव टू फाइंड आउट। सेकेंड इज व्हाट इज योर फिलॉसफी, आप मार्केटिंग, मतलब अगर आप जो हो प्रोडक्शन है तो आपका दाम कम होगा, एंड प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आपकी जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी। इफ यू आर सेलिंग नेक्सा तो वो कॉस्टली है, इफ यू आर सेलिंग इन द मारुति सेगमेंट वो सस्ता है। सो यू हैव टू सी व्हाट इज द फिलॉसफी यू हैव टेकन, देन व्हाट इज योर कॉम्पिटिटर्स प्राइस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट्स, आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रख सकते हो। कॉम्पिटिटर 1 लाख का बेच रहा है और आप 10,000 में बेच रहे हो, या आप 2 लाख में बेच रहे हो, दोनों नहीं हो सकता है। सो इट हैज टू बी। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, लाइक कुछ आपके प्रोडक्ट, ड्रग्स, फार्मा, एंड देन कंज्यूमर गुड्स लाइक सॉल्ट, इनमें आप ज्यादा मार्जिन रखकर नहीं चल सकते हो। तो इन सबको लेकर हम जो है प्राइस को फिक्स करते हैं। बेसिक हमारा होता है कॉस्टिंग और प्लस वेरिएबल्स, हमारे सारे वेरिएबल्स। तो ये हमारा हो गया प्राइस रिलेटेड डिसीजंस, 3 मार्कर में आया हुआ। द नेक्स्ट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट, आप उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखोगे। कुछ चीजें होती है लाइक आपका एफएमसीजी है तो दे आर सोल्ड इमीडिएटली, लेकिन अगर आपके कैपिटल गुड्स हैं, बड़े गुड्स हैं, लाइक कार है, ऑटोमोबाइल्स है, तो दे आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली, सो यू नीड टू स्टोर देम। तो व्हाट विल बी योर वेयर हाउस सिस्टम, और दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर हैविंग, तो आपको वेयर हाउस भी उसके अकॉर्डिंग लेना है। देन व्हाट विल बी द चैनल्स, वेदर इट विल बी द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, या आपका होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। जितने आपके कंज्यूमर गुड्स हैं दे गो विथ लॉन्गर चैनल, क्योंकि हम कम मात्रा में सामान खरीदते हैं। तो फर्स्ट इट इज द मैन्युफैक्चरर, देन वहां से होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर हमारे पास आता है कैपिटल गुड्स। हमारे नॉर्मली डायरेक्टली या फिर थ्रू वन चैनल, जैसे आपके कार वगैरह होते हैं उनके सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, दे सेल आउट। And nowadays, many companies are also going with the zero level channel, direct channels. Zero level is direct channel. Last but not the least is how would you promote your product? आप promote कैसे करोगे? तो promote के लिए the most common is advertisement, which is a paid impersonal form. टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में, you can put it anywhere. That is called as an impersonal paid form. ये 1 marker question है in the MCQs. Then it may be a sales promotion. आपका हो सकता है कि जो इंसान है वो मतलब सेल्स मैन के थ्रू कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, यू आर पुटिंग द केओ, मतलब कि जो केओस्क है वो डाला हुआ आपने दुकानों के बाहर, या आप टेक्निक्स अपनाते हो, प्रमोशनल टेक्निक्स लाइक 1+1 फ्री,
डिस्काउंट, रिबेट, आप कुछ सेल्स टेक्निक अपनाते हो, इट कैन बी थ्रू दैट ऑल्सो। इट डिपेंड्स कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल, तो उससे रिलेटेड जितने भी हमें डिसीशंस है, लाइक कई जगहों पे क्या होता है, द टेक्निक इज टेकन की पाउचेस जो है वो दे दिए जाते हैं इन फ्री, सो दैट पीपल यूज इट एंड देन दे बाय इट। तो प्रमोशनल टेक्निक्स आपके कैसे होंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू होंगे, स्पॉन्सर, मतलब कि किस तरीके से आप उसको लेकर जाओ। देन व्हाट विल बी द कस्टमर सर्विस, मतलब कि लास्ट में जब आपका सामान बिक गया, if the customer wants to talk to you, they have some complaint, they have some suggestion, what will be the likewise? Then what will be the public relation, आपका आपका पब्लिक रिलेशन क्या रहेगा, वो भी आपको इसी में डिसाइड करना है अंडर द प्रमोशन। तो कस्टमर केयर के लिए नाउ एज पर द सीपीए वी हैव टू हैव अ नंबर, कस्टमर केयर नंबर, जैसे 1800 वाले नंबर होते हैं, वेयर द कस्टमर इज एबल टू, जो हमारा आता है अंडर राइट टू बी हर्ड, दैट कम्स अंडर राइट टू बी हर्ड। और इसी चैप्टर से उस चैप्टर को रिलेट करके क्वेश्चंस आए हुए हैं, अंडर विच राइट ये आपका फिक्स होता है। अंडर राइट टू बी हर्ड द कस्टमर सर्विस सेल हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो द पर्सन कैन कॉन्टैक्ट द कस्टमर सर्विस एंड रिप्लेस इट और वॉट एवर दे वांट। देन पीआर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रमोशन के लिए भी, टू गिव द मैसेजेस, टू गिव द मतलब की इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स, टू द पब्लिक, फॉर द स्पॉन्सरशिप, एंड इन एनी केस द कंपनी हैज फेस्ड एनी डेंट, कंपनी को कोई नुकसान पहुंच गया है, डेंट मींस नुकसान, जैसे गाड़ी में डेंट पड़ जाता है, देन उसको जो है रिपेयर करना आपका जो है पब्लिक रिलेशन का काम होता है। दे आर ऑल्सो द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सरिंग, फॉर प्रमोटिंग योर कंपनी, यू, आपको ऑन द मीडिया, उन्हीं का काम होता है। जितने भी आजकल आप देखोगे द सोशल इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे आर द वन हु प्रमोट, वो आपकी कंपनी की ऐसी तारीफें करते हैं दैट द प्रोडक्ट गेट्स प्रमोटेड। तो दीज ऑल, ये सब कुछ जो हमें करना है, मैनेज करना है, दैट comes under one single umbrella that is called as marketing management. The questions that you can expect, मतलब ब्रांडिंग से बहुत आया है, आइडेंटिफाई द फिलॉसफी तो काफी रिपीटेड रहा है, देन लेबलिंग को डिस्क्राइब करना या फिर इवन ड्रॉ करना भी पेपर में आया है। प्राइसिंग वाला क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स वाइल, मतलब कि डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ अ कंपनी। देन अगर किसी कंपनी का जो इमेज है, इफ इट हैज बीन स्पॉइल्ड, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज पीआर, उसका जो है ऐसे, मतलब कि दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन गेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए इनमें से। So that's the chapter that's called marketing management. With this, I think we have completed 4 chapters in our revision also.